फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इन दिनों केवल मीडिया में अथवा बैंकर्स के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का। लेकिन इस बारे में अगर बात करें तो अभी गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज्ड है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन में क्या करना है, डी इन्वेस्टमेंट करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है या किन बैंक को करना है, क्योंकि अभी भी पॉलिसी मैटर डिसाइड नहीं है। आप दो जिम्मेदार व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्री मैडम सीतारमन, दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या सच है क्या नहीं सच है, ये अभी भी डिसाइड नहीं है। आपको याद होगा कि अभी ईटी को, इकोनॉमिक टाइम्स को श्री स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट में कहा दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू बी रीजनेबल while picking the public sector bank that will be privatized. Minister of State for Finance Anurag Singh Thakur told ET in an interview, adding that the selection should appeal to the potential buyer. SIC bank will not attract any investor. It means, उनका एक और स्टेटमेंट उसी साथ में है, as a customer you will see what is being offered. He said, it has to be a fair deal for the buyer, for the government and also for bank customer. Giving any sick bank will not help any company to come forward and buy a bank. गवर्नमेंट किसको बेचना चाहती है, वीक बैंक को, स्मॉल बैंक को या बिगर बैंक को? इसके जस्ट अपोजिट फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट सेशन के स्पीच के बाद एक इंटरव्यू में कहा था। आइए उस इंटरव्यू की हम क्लिपिंग आपको सुनाते हैं। Because to privatize banks in a country like India, I mean, given the history of nationalization and everything else, it's a very, very bold move. Do you expect political opposition to this move? I would want to reason it out, because we are not saying we are not going to have any public sector bank at all. Certainly not. Public sector banks will be there, will continue and will have to be viable. Public sector banks will have to have the strength of scaling up. We need many more SBIs in this country, and for that that is why you had since last 2 years this amalgamation of banks, scaling them up and so on. But with all this said, there are also some banks, public sector banks, which are just not picking up. Their health is not improving even in spite of infusion of more and more cash. I'm not getting into the details of who they are or what nature of problem they are suffering from. So, is it the sentiment which has to guide us, or the strategic importance of banks? And public sector banks, I even today recognize, have a very big role to play in this country, there's no doubt. But how many is good enough? And how many is good enough? Even if they are good, bad, ugly, we have to keep it because they're public sector. Is it important to have large, serviceable, managed well, professionally run, and actually serving all those areas where other private banks wouldn't go, kind of public sector banks? Or because public sector banks were X number and that X number is secret? We have to reason this out. We are not against keeping public sector banks, and we'll be happy for them to perform better each year. But there are some whose economics is worrisome. अगर हम रोजगार की बात करें तो हम, मैडम ने कहा था, आपने क्लिपिंग में सुना हो, कि हमें चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक, वी नीड पब्लिक सेक्टर बैंक, द रोबस्ट बिग बैंक like SBI, 20 SBI like SBI banks. We are worried about the weak bank. We worry about the banks which health is not good. Worrisome for those banks which, after infusion of funds and all the steps to be taken, they are not going to be healthy. इसके मतलब क्या हुआ कि वो अनहेल्दी बैंक को, जो बैंक वीक हैं, उस बैंक को चाहती हैं कि हम पिक करें फॉर द प्राइवेटाइजेशन और फॉर द सेल ऑफ स्टेक। दोनों के बातों में विरोधाभास। एक कहता है कि बिग बैंक के बारे में हम सोचते हैं, जो पोटेंशियल बायर हैं वो इंटरेस्ट दिखाएंगे ताकि कस्टमर को, बैंकर्स को और गवर्नमेंट को सबको फ़ायदा हो, बायर को फ़ायदा हो।
एक तरफ मैडम का कहना है कि नहीं, जो अनहेल्दी बैंक हैं, जो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, जो कम इन्फ्यूजन के बाद जिनका एनपीए नहीं कम हो रहा है, उन बैंक को पिक करेंगे। यानी कि मिनिस्ट्री लेवल पे ही देयर इज ए कन्फ्यूज़न, और ये कन्फ्यूज़न कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये भी नहीं पता। अनुराग ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा, ठाकुर सेड द प्रोसेस विल स्टार्ट आफ्टर द डिस्कशंस विद इन द मिनिस्ट्री, एक्सप्लेनिंग द rationale behind the decision to private state-run banks. He said an economy like India needs more robust bank, a greater number of lenders and increased credit and liquidity. So capacity of the banking sector needs to be expanded for that. इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी होगी, क्या मेथोडोलॉजी होगी, दे आर अभी कंफ्यूज्ड हैं। इन द मेन टाइम एमडी ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया बिजनेस लाइन ने कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में और प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज़ नॉट एट फाइनलाइज्ड एनी बैंक फॉर प्राइवेटाइजेशन, दिस इज अ डिसीजन टेकन एट द पॉलिसी लेवल, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड सम ऑफ द बैंक्स आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन, बट द modalities आर yet to be decided. We don't know how long it may take, said Mr. Rajiv, A.S. Rajiv, Managing Director and CEO, Bank of Maharashtra. उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हुए कहा कि दैट बैंक इज इन इनकम्फर्टेबल पोजिशन ऑन फाइनेंशियल पैरामीटर्स. बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ ए लोन बुक ऑफ रुपीज़ 1.05 lakh crore, of which the moratorium restructuring book is about 1,300 crore. That is almost 1% of the total loan book. We have already made provision of rupees 1,500 crore to that. This is a floating provision under the COVID impact. We are adequately covered for this, he said, adding the lender has already recovered around rupees 850 crores for the 9 months of the current fiscal. Additional rupees 700 crore of the recovery is in the pipeline for the remaining 3 months. So that total recovery for the current fiscal will be around rupees 1,500 crore. उनका ये कहना कि अभी उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि गवर्नमेंट हैज़ फाइनलाइज्ड फॉर एनी बैंक. नंबर 1, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पोजीशन स्ट्रांग है और रिकवरी अच्छी हो रही है. ऐसे में क्या होगा, उनके इस बारे में कुछ कहने से इनकार किया. टोटली गवर्नमेंट इज़ कन्फ्यूज्ड how they will proceed, which bank will be picked, और क्या क्राइटेरिया, क्या पैरामीटर होंगे. गवर्नमेंट इज वेटिंग एंड वॉच स्थिति में है कि यूनियन की तरफ से क्या रिपर्कशन होता है, क्या एजिटेशन होता है, क्या प्रोटेस्ट होता है, जबकि अपोजिशन पार्टी तो एकदम साइलेंट है. लेकिन यही मौका है. हालांकि आपको याद होगा कि जब 2018 में मर्जर के समय यूएफबीयू ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, लेकिन उसका गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं हुआ. इसलिए जब तक एग्रेसिव प्रोटेस्ट एजिटेशन या कैंप नहीं चलाया जाएगा यूनियन द्वारा, तब तक ये उम्मीद कम है कि गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोक दे. हाँ, अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना ओनरशिप कंटिन्यू रखे और डिसइन्वेस्टमेंट करके बैंकों को प्राइवेट करने से रोक ले और ओनरशिप अपने पास रखे. फ्रेंड्स, आज बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप एंजॉय करिए, खुश रहिए. थैंक यू.